गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। रेडी हैं आप? तो फिर आज मैं लिए चलता हूं आपको डिस्कशन के लिए, और आज का टॉपिक है फिर पुनः उसी की नाउन की जो हम लोग वो चल रहे हैं डिस्कशन की तरफ, और उसकी कंटिन्यूटी में ही आगे मैं लेकर चल रहा हूं नाउन नंबर। एक क्लिप और आपको मिलेगा नाउन नंबर पे। इसके आगे आज का क्लिप है वो नाउन नंबर एरर डिटेक्शन। आप देख रहे हैं यहां 2 कॉलम्स में वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आपका ये 10 क्वेश्चंस का सेट रहा। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बाद में देखेंगे उसे। और आपके सामने ये 2 कॉलम्स में ये नाउन्स लिखे गए हैं। सबसे टॉप पे देखेंगे, ये लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उसमें देख रहे हैं आप नाउन्स लुकिंग प्लूरल बट सिंगुलर। इन नाउन्स का यहां प्रयोग किया गया है जो देखने में प्लूरल तो दिखते हैं लेकिन होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। और इसमें आने वाले वर्ड्स हैं, गौर करेंगे मैंने क्या कहा, इस लेफ्ट वाले कॉलम में क्या है, नाउन्स लुकिंग प्लूरल, प्लूरल दिखने वाले बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। ये इन नाउन्स की लिस्ट है, और वो नाउन्स हैं मम्स, MUMPS मम्स, measles, MEASLES measles, and these are the words, and these words are the names of diseases. Next here, in the rectangular box, there are 2 words again. Billiards, 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 and drafts. Come on, pay attention here. The word is drafts. I would like to draw your attention to this word DRAUGHT here, and this is always mentioned in the plural form, and its phonetic transcription is drafts, drafts, draft here, drafts, and this one drafts. But this word DROUGHT, this is drought. Here you find drought, 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 drought. This one is. This drought is noun, uncountable and also countable, both uncountable and countable. And draft is noun, countable and only countable in the plural form, especially plural. Here, drafts is the name of a game. Name of a game, just like billiards, name of a game. And drought means the situation of the scarcity of raining and the long duration of the scarcity of raining. The long duration of the scarcity of raining here. Okay. Another word here, draft, DRAFT, draft. Its phonetic transcription is again the same. Draft. And this draft is noun and verb both. Noun countable and verb transitive. Here verb transitive both. So come on now.
So these two words are mentioned here as the names of games, billiards and drafts. Now in the cloudy box, you find here some words just as physics, electronics, mathematics, genetics, phonetics, politics, etc. All these words are found ending in S. और एस लगे होने की वजह से अक्सर लोग आप देख रहे हैं मम्स एंड्स इन एस, मीजल्स विद एस, बिलियर्ड्स विद एस, ड्राफ्ट्स इज ऑल्सो एंड्स इन एस, फिजिक्स, ऑल दीज वर्ड्स end in S. In spite of ending in S, all these words are considered singular. Clear? Now, in the right column you find that nouns looking singular but plural. Nouns looking singular, ये nouns singular दिखते हैं, कहीं इसमें आप देख रहे हैं कहीं कोई s नहीं लगा हुआ है, विदाउट s आ रहा है हमारा, लेकिन वो सिंगुलर देखने में तो दिखते हैं बट होते हैं एक्चुअली वो क्या, प्लूरल। मीन्स यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे में कौन कौन से वर्ड्स हैं? कैटल, कैटल मीन्स एनिमल्स, cattle means animals. I would like to write here cattle. Cattle, noun, plural, means animals. Animals here. People, I think you already, this word is familiar with you. Cattle अक्सर ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पर्सनल, especially the officials or the employees or the persons especially working in the armed forces, just as Indian Army or Indian Air Force or any defense, it means defense organization. So that is personnel. All the persons, not person. Personal means all the persons. People की तरह वो भी प्लूरल होता है। पुलिस, पर्सनल इज जैसे प्लूरल है उसी तरह पुलिस भी हमारा प्लूरल होता है। नेक्स्ट है हमारा पीजेंट्री। पीजेंट मीन्स वो मजदूर किसान कहते हैं और फार्मर कहते हैं जिनकी अपनी जमीन हो। पीजेंट कहते हैं उन्हें जिन्हें वो जमीन फार्मर से, लैंड ऑनर से लेकर उस पर खेती करते हैं, दैट इज पीजेंट। और वो उन पीजेंट का जो ग्रुप हुआ दैट इज व्हाट, पीजेंट्री, एंड दिस वर्ड इज ऑलवेज मेंशन्ड इन द प्लूरल फॉर्म। जेंट्री, all the gentle people are collectively considered or known as gentry. और ये आपका cavalry. Cavalry word, this word is a noun generally used especially for a singular and also for a plural. Cavalry होता क्या है पहले ये जाने हम लोग। Means especially the wing of army or the wing of the police in which the soldiers use horses for patrolling. Okay, so वो horse जो आर्मी का वो विंग जिसमें घुड़सवार सैनिक होते हैं वो that very wing is known as cavalry. और ये सिंगुलरली एंड प्लूरली दोनों फॉर्म में आता है। मैं लिख देना चाहूंगा यहाँ SING और PL दोनों। सिंगुलर के लिए भी एक अगर घुड़सवार सैनिक है उसके लिए भी हमारा कैवेलरी, और फिर प्लूरल के लिए कैवेलरीज नहीं, कैवेलरी द सेम। पोल्ट्री इज ऑलवेज मेंशन्ड इन द प्लूरल फॉर्म in which some birds, especially some chicks like cocks, hens, okay, and quail, बटेर वगैरह जो भी पाला जाता है वो स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग मीट, वो पूरे को हम प्लूरल फॉर्म में मेंशन करते हैं। वर्मिन, especially the animals or the birds or the pesticides or the insects, not pesticides, sorry, the pests or the insects are collectively known as vermin, and this word is always mentioned in the plural form. Nobility is mentioned in the singular and plural both. Nobility is used as noun uncountable and countable both. Uncountable means the ability of being noble, मीन्स जेंटिलिटी आप कह सकते हैं, बट जब हमारा काउंटेबल आता है तो ये प्लूरल आता है, और जब ये प्लूरल आता है मीन्स व्हाट, द पीपल बिलोंगिंग टू अ हायर स्टैंडर्ड सोसाइटी।
economically standard, educationally standard or advanced people come under gentry and nobility both. So come on now, आप इन सारे वर्ड से परिचित हो लिए और अब मैं सीधा लेकर के चलना चाहूंगा आपको इन सारे 10 सेंटेंसेस के प्रैक्टिस के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए आपका इंस्ट्रक्शन यहां मेंशन किया गया है। कम ऑन हियर, डिटेक्ट द एरॉनियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा, द लग्जरियस फ्लैट्स आर अलॉटेड टू सम ऑफ द आर्मी पर्सोनेल्स। द लग्जरियस फ्लैट्स, एकदम ऐसो आराम और सुख सुविधा से सब संपन्न, बिल्कुल वो फ्लैट्स को अलॉटेड किया जाता है, मीन्स दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है टू सम ऑफ द आर्मी पर्सनल्स, आर्मी के अधिकारियों में से, एम्प्लॉयज में से कुछ लोगों को ही लग्जरियस फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हियर आर्मी पर्सनल्स, सम ऑफ है तो यहां उसके बाद ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल है, जैसे वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड। वन ऑफ द बॉयज, कई सारे लड़कों में से एक लड़का क्या है, हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है। वन ऑफ द बॉयज, सिलेक्शन हो रहा है तो ऑफ के बाद हमारा यहां नाउन प्लूरल होगा। तो फिर यहां हमारा द लग्जरियस फ्लैट्स आर अलॉटेड टू सम ऑफ द आर्मी पर्सनल्स, सम ऑफ द आर्मी पर्सनल्स। I think personal's noun plural is right. Sorry, personal is right. अब ये भी आप देखिए, nouns looking singular but plural में आपने देखा यहां personal is used always in the plural form, never in the singular form, plural only. अब यहां plural है ही खुद ये, जैसे people plural है, cattle हमारा always plural है, police plural है, पिजेंट्री प्लूरल है, जेंट्री प्लूरल है, पोल्ट्री प्लूरल है और वर्मिन प्लूरल है। सिर्फ दो वर्ड्स इसमें आए जो सिंगुलर के लिए भी आता है, कैवेलरी, और फिर काउंटेबल में आएगा तो प्लूरल के रूप में आएगा, और नोबिलिटी। सो कम ऑन, क्या पर्सनल्स यहां हमारा राइट है? पर्सनल देखिए आप, ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो फिर क्या उसमें हम एस लगाएंगे प्लूरल के लिए? नो, हमारा सेंटेंस में अर्थात एरर कहां है? पार्ट सी इज रॉन्ग हियर, एरॉनियस। सो आंसर जोन हमारा यहां है, और आंसर जोन में मैं यहां लिखना चाहूंगा फर्स्ट का हमारा सी। आप देख रहे हैं फर्स्ट का सी। एरर क्या है हमारा? या पर्सनल्स इज रॉन्ग, PERSONNELS और PERSONNEL. So which one is right? Personnel is right. Personals is wrong. Number 2, I saw some cattles. Again cattles. देखिए वहां हमारा एस लगा हुआ है, और यहां भी फर्स्ट वर्ड में आपको देख रहे हैं कैटल इज ऑलरेडी प्लूरल। सो कैटल का क्या कैटल्स होगा? नेवर। इन सारे वर्ड्स को याद रखना है। सो आई सा सम कैटल्स, नो, आई सा सम कैटल, मैंने कुछ पशुओं को देखा। आई सा सम कैटल, कैटल्स इज रॉन्ग। सो हियर सेकेंड सेंटेंस, द आंसर इज ए, एंड द एरोनियस पार्ट इज कैटल्स, CATTLES and CATTLE. Cattle is right, cattles is wrong. Here, and आप देखा आपने, I saw some cattle, मैंने कुछ पशुओं को देखा, क्या करते हुए? Grazing in the field, फील्ड में चरते हुए। कौन से फील्ड में चरते हुए? Used for billiards. Billiards right है? Billiards, अभी गेम का नाम आया था, बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट्स। गौर करेंगे, ड्राफ्ट्स, DRAUGHT जैसे युवा हमारा, दैट इज ड्राफ्ट। ये हमारा ऐसा नहीं कि प्लूरल एस के साथ ही आता है, जब ये गेम का नाम होगा तो एस के साथ आएगा, और जब ये गेम का नाम नहीं होगा, गेम का वो एक DRAUGHT, दिस इज नाउन काउंटेबल सिंगुलर। और ये कब आता है हमारा? सिंगुलर। Drafts is the name of a game, okay, and this game is played
there is a just like this there is a chart just like that of chess. आपने चेस का चार्ट देखा है, ठीक उसी तरह ड्राफ्ट्स के भी हमारा चार्ट होता है। 24 बॉक्सेस होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर अल्टरनेट करके, ठीक है ना। तो उसी का एक और वो फर्क यही है कि चेस में जो उसके जो क्या कहें उसको चेस के तहत जो खेले जाने वाले भिन्न भिन्न जो गोटी का नाम है ना, वो उन सारे उनके लिए वर्ड्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह लेते हैं, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है। तो लेकिन यहां पर हमारा ड्राफ्ट्स में वो घोड़े, हाथी, ऊंट नहीं होते हैं, वो राजा मंत्री नहीं होता है, वहां सिपाही नहीं है। वो सिपाही को इंग्लिश में पॉन कहा जाता है। चेस का सारे उसमें जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं चेस में आने वाले, उन सबों के अगले अलग अलग नाम हैं। मुझे अभी स्मरण में सबों का नाम नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं अभी वहां उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस इतना जान लें कि जैसे चेस में वो ब्लैक एंड व्हाइट के खाने होते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं, उसी तरह से ड्राफ्ट्स में भी हमारे खाने होते हैं। और उस ड्राफ्ट में जिसके बदौलत जो वो गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो राउंड एक पेबल की तरह होता है। वो एक पेबल को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। उस ड्राफ्ट्स गेम में खेले जाने वाली जो एक पेबल है, एक कैरेक्टर है, उसको क्या कहते हैं, उस एक कैरेक्टर को ड्राफ्ट। सो दिस इज ड्राफ्ट, बट इफ द वर्ड इज DROUGHT, दैट इज ड्रॉट, जिसे सूखा कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। इसका एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाता है इस ड्रॉट का, फ्लड। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, फ्लड, अतिवृष्टि, बाढ़। दैट इज ड्रॉट का एंटोनिम, नॉट सिनोनिम। दिस सिंबल ये इक्वल का साइन करके इंटरसेक्ट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो क्या हो गया हमारा एंटोनिम, इक्वल हो गया सिनोनिम का। So come on to the sentence number 2. I saw some cattle grazing in the field. कौन से फील्ड में ग्रेज करते हुए मैंने कुछ देखा, कैटल्स, नो कैटल। I saw some cattle grazing in the field used for billiards. उसी फील्ड में जिस फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है हमारा क्या खेलने के लिए, बिलियर्ड्स के नाम के गेम को खेलने के लिए। आपका सेकंड का यहां आंसर भी लिख दिया गया है आंसर जोन में, आप यहां देख रहे होंगे। नंबर 3 की ओर मैं चलना चाहूंगा। नंबर 3 हमारा, ही लाइक्स टू प्ले द ड्राफ्ट सिटिंग इन द ड्राफ्ट ऑफ द एयर कंडीशनर। बहुत बढ़िया सेंटेंस। यह ड्राफ्ट, एक तो मैंने मीनिंग ये बताया, नाउन काउंटेबल। फर्स्ट मीनिंग में मैंने बताया यहां क्या, किस रूप में, the character with which the game named draft is played. The character of the game named ड्राफ्ट्स नाम का जो गेम है, उसका एक कैरेक्टर, एक पात्र, वो ड्राफ्ट कहा जाएगा। सेकेंड मीनिंग हमारा नाउन काउंटेबल के रूप में ही होगा, और वो हो जाता है द फ्लो ऑफ, नॉट काउंटेबल बट हियर अनकाउंटेबल आ जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल। द फ्लो ऑफ कूल एयर, द फ्लो ऑफ कूल एयर, कूल एयर, उसे कहते हैं आप ड्राफ्ट। नाउन अनकाउंटेबल के रूप में हमारा आ जाता है। चले हम लोग सेंटेंस नंबर 3 में, आप देख रहे हैं कि ड्राफ्ट का प्रयोग 2 बार किया गया। पार्ट ए में भी देख रहे हैं और पार्ट बी में भी ड्राफ्ट आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन हियर। ही लाइक्स टू प्ले द ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट को खेलना चाहता है। गौर करना है कि ड्राफ्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में भी आता है। ड्राफ्ट्स ऑलवेज ड्राफ्ट्स, कब, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि वो हमारा द नेम ऑफ अ गेम हो जाता है हमारा, और प्लूरल की तरह वो दिखता है हमारा ड्राफ्ट्स, देख रहे हैं ना। बट होता है क्या वो, सॉरी यहां प्लूरल लिख दिया गया है, दिस इज, वो प्लूरल होता नहीं है, दिखता है प्लूरल, बट होता क्या ये, सिंगुलर, सिंगुलर हियर।
वो गेम का नाम है, जैसे लूडो, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, दीज आर द नेम्स ऑफ गेम. इन द सेम वे ड्राफ्ट्स इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ गेम. अब जहां गेम का नाम होगा तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सिंगुलर, मींस वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आ जाएगा हमारा. क्योंकि किसी भी गेम के नाम के पहले हम किसी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं. आप देख लें, नोट में यह जान लें कि नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ अ गेम, द नेम ऑफ अ गेम. जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां देना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रूल. आप इसे अच्छी तरह, मैंने इसे ब्लू इंक में मैंने मेंशन कर दिया है. नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ अ गेम. किसी भी गेम के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. अब एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, इसके नीचे आपका क्लियर हो चुकेगा. देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ही प्लेज ब्लैंक क्रिकेट. ओके, and the second sentence is, this is first sentence, the second sentence is, he plays with blank cricket. अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट हमारा गेम का नाम है ना, क्रिकेट, फुटबॉल. और जब गेम का नाम है तो क्या उसके पहले कोई आर्टिकल आएगा? लिखा जा रहा है आपका नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ अ गेम. गेम के नाम के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे. और यहां आपको मेंशन करना है ए एन और द. ए एन का प्रयोग करना है, ए एन और नथिंग मीन्स ब्लैंक. जहां आवश्यक हो कुछ नहीं, ए एन को बस सिर्फ लिखिए. ए और एन होगा क्या यहां, ही प्लेज अ क्रिकेट, ही प्लेज विद अ क्रिकेट. नो, क्रिकेट तो हम लोग यही जानते हैं, क्रिकेट इज द नेम ऑफ अ गेम. अब गेम का नाम है तो फिर हमारा दोनों में से किसी में भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना. फर्स्ट में भी नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा. नो, एक में होगा. अब किस में होगा हमारा क्रिकेट के पहले आर्टिकल ए या एन का? जब आप क्रिकेट वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे तो ये क्रिकेट वर्ड आपको मिलेगा, यहां मैं लिख देना चाहूंगा, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इज यूज्ड नाउन व्हाट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ. काउंटेबल के रूप में हो जाता है, मीनिंग कब हमारा, जब वो काउंटेबल आता है तो क्या हो जाता है, एन इंसेक्ट. एन इंसेक्ट एक प्रकार का कीड़ा होता है वो, जिसे आप हिंदी में झिंगुर कह लेते हैं क्रिकेट. और क्रिकेट जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल होता है तो दैट इज द नेम ऑफ अ गेम. नेम ऑफ अ गेम, वो गेम का नाम हो जाता है. अब देखिए यहां, ही प्लेज अ क्रिकेट. नो, ही प्लेज क्रिकेट. नो आर्टिकल्स, यहां गौर करेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, नो आर्टिकल्स. या कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि क्रिकेट इज द नेम ऑफ अ गेम, ये गेम है. बट ही प्लेज विद आ गया, सिर्फ विद के आने से अब ये क्रिकेट हमारा क्या बन गया, हमारा नाउन. काउंटेबल मीन्स व्हाट, इंसेक्ट. वो इंसेक्ट बन गया. अर्थात यहां क्या हो जाएगा, ही प्लेज विद अ क्रिकेट. वो एक झिंगुर के साथ खेलता है. झिंगुर चल रहा है, उसे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है उसे. तो ये मैंने बताया कि द नेम, नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ अ गेम. अब चलते हैं हम लोग थर्ड सेंटेंस की बात कर रहे थे यहां. कम ऑन हियर, थर्ड सेंटेंस की तरफ देख रहे हैं आप. ही लाइक्स टू प्ले द ड्राफ्ट. ही लाइक्स टू प्ले द ड्राफ्ट सिटिंग इन द ड्राफ्ट ऑफ द एयर कंडीशनर. दोनों जगह देख रहे हैं आप, द ड्राफ्ट यहां भी है, बी में भी और पार्ट ए में भी द ड्राफ्ट नजर आ रहा है. कौन सा सही? ही लाइक्स टू प्ले. प्ले वर्ड क्लियर कर रहा है कि एक जगह ये हमारा गेम का नाम है. ही लाइक्स टू प्ले, वो पसंद करता है खेलना. क्या खेलना पसंद करता है? ड्राफ्ट को. तो ड्राफ्ट जब गेम का नाम हो जाएगा तो सबसे पहली बात तो कि हमारा द भी नहीं लगेगा यहां, और दूसरी बात कि ड्राफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट्स. देखेंगे आप यहां, ड्राफ्ट्स जब गेम का नाम के रूप में होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म. सो कम ऑन, यहां हमारा आंसर रेडी है.
किस पार्ट में हमारा एरर हुआ? पार्ट ए में, क्योंकि ही लाइक्स टू प्ले ड्राफ्ट्स, वो ड्राफ्ट्स खेलना पसंद करता है। कहां? सिटिंग इन द ड्राफ्ट, वो कूल जेंटल ब्रिज में, वो मंद मंद ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है उसमें किस चीज की वो ठंडी हवा? कूल विंड। किसकी कूल विंड? ऑफ द एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के कूल विंड में वो बैठ करके वो ड्राफ्ट खेलना पसंद करता है। ड्राफ्ट्स खेलना, ड्राफ्ट्स द नेम ऑफ द गेम दैट लुक्स लाइक चेस, जो चेस की तरह नजर आता है। So sentence number 3, part A is wrong, so answer is A। और इसके wrong words हमारे हो गए the draft, part A में the draft DRAUGHT, और इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहां drafts DRAUGHTS। हमारा द ओमिटेड हो जाएगा। क्यों ओमिटेड होगा हमारा द? इसलिए डिलीटेड होगा क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ अ गेम। तो ये हमारा द ड्राफ्ट DRAUGHT इज रॉन्ग एंड ड्राफ्ट्स इज राइट बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ गेम। सो कम ऑन हियर, सेंटेंस नंबर 3, he likes to play the draft is wrong because draft is here the name of a game and the name of the game is drafts, not the draft. So the and draft, both words will be omitted, and here in the answer zone it has been mentioned that the draft will be mentioned and in is wrong, and in place of the drafts will be mentioned. So the correct sentence will be he likes to play drafts sitting in the draft. Here draft will be preceded by the, यहां B में द आएगा ड्राफ्ट के पहले। क्यों? दैट इज द ड्राफ्ट। किसके ड्राफ्ट? वही कूल विंड। किस चीज के कूल विंड? चूंकि यहां डिफिनिट कर रहा है ऑफ द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के कूल विंड में बैठकर। तो क्लियर हो चुका सेंटेंस नंबर 3। आगे चले हम लोग सेंटेंस नंबर 4 की ओर। He is good not only at a draft but also at taking a draft of this bitter liquid. Wow! Draft, कई सारे मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहां ड्राफ्ट आपने देखा नाउन काउंटेबल सिंगुलर के रूप में, द कैरेक्टर ऑफ अ गेम नेम्ड ड्राफ्ट्स। सेकंड हमारा द फ्लो ऑफ कूल एयर, और फिर एक और नाउन हमारा ड्राफ्ट आ जाता है। इसकी एक और मीनिंग यहां मैं लिखना चाहूंगा DRAUGHT, ड्राफ्ट। हियर नाउन काउंटेबल singular means a swallow of a liquid। कोई चीज आप लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं या वाइन लेते हैं कुछ लोग, तो वो जो एक घूंट में जो जितना लेते हैं, दैट वेरी क्वांटिटी इन अ swallow is what? A draft। that is the quantity of a liquid, the quantity of a liquid, the quantity of a liquid consumed in a swallow, consumed in a swallow। एक swallow में, एक घूंट में जो आप क्वांटिटी लेते हैं लिक्विड का, वो एक घूंट हम क्या कहते हैं उसे? ड्राफ्ट। सो सेंटेंस नंबर 4, ही इज गुड नॉट ओनली एट अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स यहां क्या घूंट आ रहा है? ही इज गुड, वो अच्छा है ना केवल ड्राफ्ट में, बट ऑल्सो एट टेकिंग अ ड्राफ्ट ऑफ दिस बीटर लिक्विड, बहुत ही कड़वा लगने वाला टेस्ट में, वो उस लिक्विड का एक ड्राफ्ट लेने में, टेक करने में, ड्राफ्ट लेने में बल्कि वो गुड है। आप देख रहे हैं एक जगह ड्राफ्ट हमारा काउंटेबल मीनिंग शो कर रहा है घूंट, सेकंड पार्ट में बी में
लेकिन फर्स्ट क्या हमारा, क्या वो काउंटेबल, वो घूंट आ रहा है क्या मीनिंग, या फिर वो ड्राफ्ट्स का वो एक जो कैरेक्टर है जिसकी बदौलत हम, एक गोटी कह लीजिए जिसकी बदौलत हम वो ड्राफ्ट्स गेम को खेलते हैं, क्या वो आ रहा है हमारा? ही इज गुड नॉट ओनली एट अ ड्राफ्ट, वो अच्छा है ना केवल एक ड्राफ्ट में। नो, दिस इज नॉट मीनिंगफुल हियर। ही इज गुड नॉट ओनली एट ड्राफ्ट्स, वो ड्राफ्ट्स में ही सिर्फ अच्छा नहीं है, ड्राफ्ट्स खेलने में ही सिर्फ वो अच्छा नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है सिर्फ, बल्कि और बट ऑल्सो किस चीज में भी वो स्किल्ड है, बट ऑल्सो ही इज गुड एट टेकिंग अ ड्राफ्ट, ही इज गुड एट टेकिंग अ ड्राफ्ट, एक घूंट लेने में वो एकदम है, किस चीज की एक घूंट लेने में भी वो गुड है। तो ऑफ दिस बीटर लिक्विड, इस कड़वी जो लिक्विड है उसकी एक घूंट लेने में भी वो गुड है। तो यहां क्या हमारा पार्ट ए में और ड्राफ्ट इज राइट? आपको लगता है ऐसा कि ही इज गुड नॉट ओनली एट अ ड्राफ्ट? नो, क्या होना चाहिए? ही इज गुड नॉट ओनली एट ड्राफ्ट्स, एट के बाद हमारा ड्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात हमारा कौन सा पार्ट एरानियस हुआ? फोर्थ का पार्ट ए। रॉन्ग क्या हुआ हमारा? फोर्थ का पार्ट ए, और एरानियस पार्ट, एरानियस वर्ड्स क्या हुए? और ड्राफ्ट, जिसकी जगह पे क्या होगा? और ड्राफ्ट इज रॉन्ग, DRAUGHT, and drafts DRAUGHTS. So you find here that a draft is wrong, drafts is right. नंबर 5 की ओर चले हम लोग, सेंटेंस नंबर 5। द अमाउंट obtained from the draft is spent. द अमाउंट, वो पैसा, वो मनी, कौन सी मनी? तो ऑब्टेन्ड, दिस इज V3 फॉर्म, जिसे प्राप्त किया गया फ्रॉम द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वो काउंटेबल नाउन, वो घूंट से प्राप्त किया गया, या फिर वो ड्राफ्ट्स का वो एक जो कैरेक्टर हुआ, एक जो गोटी हुआ, उससे प्राप्त किया गया, या ड्राफ्ट गेम से प्राप्त किया गया? गेम से प्राप्त किया गया। गेम को उसने जीता होगा प्लेयर ने, और उससे जो जीतने के बाद जो अमाउंट मिला, जो पैसे मिले, उस अमाउंट की बात की जा रही है। द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राफ्ट, नो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राफ्ट्स। ओके, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राफ्ट्स। यहां पार्ट बी में इज स्पेंट, किस चीज पर उस अमाउंट को खर्च किया जाता है? द अमाउंट इज स्पेंट किस चीज पर? ऑन द ड्राफ्ट हॉर्स। ये लीजिए जी, अब ये ड्राफ्ट हॉर्स हो गया, ये घोड़ा आ रहा है हॉर्स, ये घोड़ा क्या है हमारा? दिस हॉर्स इज नाउन। अब ये क्या हमारा ड्राफ्ट नाउन आ रहा है? जी नहीं, दिस ड्राफ्ट इज एडजेक्टिव, और जब ड्राफ्ट हमारा एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, मीन्स कैरिंग हेवी लोड, काफी भारी भरकम वजन भी ढो लेने वाला, तो उस घोड़े के ऊपर खर्च करता है। ड्राफ्ट मीन्स लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। ड्राफ्ट एडजेक्टिव मैं लिख देना चाहूंगा यहां, ड्राफ्ट एडजेक्टिव हियर DRAUGHT, ड्राफ्ट एडजेक्टिव मीन्स लेबोरियस, LABORIOUS, और हार्ड वर्किंग, यू में से हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। सो नंबर 5 में हमारा क्लियर हो चुका होगा। द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राफ्ट्स, नॉट फ्रॉम द ड्राफ्ट। पार्ट बी इज रॉन्ग। ड्राफ्ट्स नाम के गेम से जो गेम खेला और वो विजेता बना, उससे जो विजेता बनने के बाद जो प्राइज के रूप में, अवार्ड के रूप में, जो पुरस्कार के रूप में पैसे मिले, उस अमाउंट को ड्राफ्ट्स से प्राप्त किया गया अमाउंट को खर्च किया जाता है ऑन द ड्राफ्ट हॉर्स। किस पर खर्च किया जाता है? उस हेवी लोड को ढोने वाले घोड़े के ऊपर, उस लेबोरियस घोड़े के ऊपर खर्च किया जाता है। सो विच पार्ट इज हियर द आंसर? 5, सेंटेंस नंबर 5, पार्ट बी। पार्ट बी इज द आंसर। द erroneous word is the draft. The draft, I would like to write in black ink here. The draft.
द ड्राफ्ट, DRAUGHT, और फिर इसकी जगह करेक्ट क्या होगा? ड्राफ्ट्स। अगेन द नेम ऑफ अ गेम, ड्राफ्ट्स। तो हमारा ये रहा, द ड्राफ्ट इज रॉन्ग एंड ड्राफ्ट्स इज राइट। नंबर 6 की ओर चलते हैं। ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहा है। गौर करेंगे, गौर करेंगे, आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को मैं आपको बता दूं, यहां मैं लिख देना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू द डीसी करंट। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक, गौर करेंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक हो गया क्या? रिलेटेड टू और फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, रिलेटेड टू डीसी, डायरेक्ट करंट। एंड इलेक्ट्रिक हो गया रिलेटेड टू एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एसी जो करंट है हमारा, और डीसी, डीसी हमारा सेल से, बैटरी से होता है, आप तो जानते ही हैं। बैटरी से जो चीजें चलेंगी उसको कैसा सामान कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक गुड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जस्ट एज द सेल फोन मीन्स द मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बताइए मुझे, द मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस। मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? जो डीसी से चलेगा, डायरेक्ट करंट से चलेगा, और डायरेक्ट करंट मींस सेल से, बैटरी से चलेगा, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक। और जो एसी है, एसी, ओके, एसी से चलने वाला जो होगा, एसी से रिलेटेड जो होगा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक। तो अब बताइए कि द आयरन that is used for pressing the cloth, the iron is an electric device or the iron is an electronic device? आयरन हमारा डीसी करंट से चलता है, बैटरी से चलता है क्या? नहीं, एसी से चलता है। और जब एसी से चलता है तो द आयरन इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड द सेल फोन मीन्स द मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द वॉच, द रिस्ट वॉच, the wrist watch is an electric device or is an electronic device? wrist watch एसी से चलता है या डीसी से? बैटरी लगाते हैं ना आप, उसमें सेल लगाते हैं, और सेल जब लगाते हैं तो वो क्या हुआ? हमारा डीसी करंट, और डीसी करंट से रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। सो द wrist watch is an electronic device. Clear? The computer is an electric device or is an electronic device? Computer, the computer किससे? अब आप तो कहेंगे सर बिजली आती है तब तो चलता है, लेकिन गौर किया आपने, बिजली कट भी जाती है, क्या बिजली से डायरेक्ट चलता है? आपने देखा उसको किससे? यूपीएस से, जिसमें एक सेल लगा होता है, और उससे आपका वो चलता है। मींस डायरेक्ट वो एसी से नहीं चलता है, एसी आकर डीसी में कन्वर्ट होता है और फिर वो डीसी उस कंप्यूटर को या लैपटॉप को चलाता है। तो जब डीसी से चल रहा है हमारा, तो द लैपटॉप और द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का भी बहुत हद तक आज आपका क्लियर हो चुका होगा। नंबर 5 की ओर फिर मैं चलता हूं। नंबर 5 तो हमारा हो चुका है, नंबर 6 की ओर। सो 6 हमारा क्या है? ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्या है? एडजेक्टिव। उसी क्रम में मैंने इलेक्ट्रिक को भी बता दिया, डिफाइन कर दिया, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिया। मैंने लिखा नहीं, मैंने बोल दिया। लिखने का चूंकि स्पेस भी कम पड़ जा रहा है, हालांकि आज बोर्ड नया आप देख रहे होंगे, बोर्ड चूंकि बनवाया गया, चूंकि पिछला बोर्ड और इससे छोटा था, लेकिन फिर भी स्पेस कम पड़ जा रहा है। चलिए कमान, फिर यहां हम लोग सो नंबर 6 की ओर। ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा जाएगा, एडजेक्टिव को नहीं पढ़ रहा है वो, क्या वो एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। और सब्जेक्ट कौन सा? ये रहा सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहा है इन दिनों। ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहा है, तो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, किस चीज से? विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। गौर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हमारा एडजेक्टिव आ गया यहां। इलेक्ट्रॉनिक इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग डिवाइस, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये, आप देख रहे हैं। सो ही इज स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहा है, किस चीज की मदद से? तो विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ रहा है, कॉल्ड द लैपटॉप। लैपटॉप कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहा है। सो विच पार्ट इज एरोनियस? पार्ट ए, 6 का भी पार्ट ए is erroneous here, and the correct word is, the incorrect word first क्या हो जाएगा हमारा? 6 का incorrect word electronic. Electronic is wrong and electronics is right. Electronics is right and electronic is wrong. Come on to the 7th sentence. Because of suffering from measles or measles, you find here measles, not measles. measles से सफर करने के कारण, तो क्लियर हो गया हमारा पार्ट 7 में हमारा कौन सा एरर हो गया? मीजल, रॉन्ग। मीजल की जगह क्या हो जाएगा? मिजल्स। आगे भी देख लें जरा हम लोग। बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम मिजल्स हिज फिजिक, अरे फिजिक की स्पेलिंग देख रहे हैं, PHYSIQUE, जबकि मैंने यहां क्या लिखा है? PHYSICS है जी, फिजिक्स है, और वहां मैंने लिख दिया फिजिक। ये क्या हुआ? यस, दैट इज राइट। फिजिक मीन्स द अपीयरेंस, द फिजिकल अपीयरेंस, योर फिजिक, जो आप दिखते हैं, दैट इज योर फिजिक। हैंडसम फिजिक, ही हैज हैंडसम फिजिक, वो हैंडसम फिजिक रखता है। ओके, सो फिजिक इज राइट देयर, फिजिक्स वहां नहीं होगा। क्लियर? फिजिक्स इज द subject, physics is the branch of science in which we study the natural items, natural things. तो फिजिक्स वहां नहीं, फिजिक इज राइट। क्यों? यहां देखिए मीनिंग को क्या कह रहा है हमारा? बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम मिजल्स, मिजल्स से सफर करने के कारण, मिजल्स नाम की बीमारी से सफर करने के कारण, हिज फिजिक, उसकी जो अपीयरेंस है, हिज फिजिक इंप्रेसेस वन लिस्ट, किसी व्यक्ति को बहुत थोड़ा इंप्रेस करती है उसकी फिजिक। मीन्स वो जो एक इंप्रेसिव, एक दिव्य जो होना चाहिए, चेहरे पे दिव्यता जो होनी चाहिए, जो एक ग्लेजिंग आनी चाहिए, वो ग्लेजिंग नहीं है। किसकी वजह से? मिजल्स के कारण। क्लियर? इसीलिए वो इंप्रेस नहीं कर पा रहा उनका फिजिक। तो हमारा एरर कहां है? विच पार्ट इज एरोनियस हियर? पार्ट बी, 7 का पार्ट बी इज एरोनियस। और रॉन्ग वर्ड क्या है हमारा? रॉन्ग वर्ड हुआ हमारा मिजल, MEASLE, और राइट क्या हुआ? MEASLES। मिजल्स इज राइट, मिजल्स इज राइट एंड मिजल इज रॉन्ग। नंबर 7 के बाद हम चलते हैं 8 की ओर, और 8 है हमारा द पुलिसेज अरेस्ट हिम। अब लीजिए ये क्या रहा जी? पुलिस है, ये बता रहा वर्ड हमारा यहां कि पुलिस इज ऑलरेडी प्लूरल, तो फिर प्लूरल है तो फिर क्या पुलिसेज होगा? नो, डिक्शनरी हमारा कहता है, द स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑलवेज सेज दैट देयर इज नो वर्ड लाइक पुलिसेज। The police is already plural, so the polices is wrong. पहले ही क्लियर हो गया हमारा कि the police is wrong. The police arrest him, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, क्योंकि पुलिस इज एन व्हाट? जब आप देखेंगे पुलिस को तो दैट इज व्हाट? द पीपल वर्किंग इन दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन पुलिस, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस कहा जाता है। सो द पुलिस अरेस्ट हिम इन द केस ऑफ अ मर्डर। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, किस चीज में अरेस्ट कर लेती है उसे? इन द केस ऑफ अ मर्डर, मर्डर के केस में उसे अरेस्ट कर लेती है। हमारा पार्ट 8 के सेंटेंस नंबर 8 का पार्ट ए इज रॉन्ग, पार्ट ए इज रॉन्ग। कौन कौन से रॉन्ग वर्ड, कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारा? पुलिसेस की जगह पुलिस होगा, POLICES इज रॉन्ग, POLICE इज राइट। So this word is right, police, and polices is wrong. नंबर 9 की ओर चलें।
नंबर 9 है हमारा 3 पुलिस कैच। अब लीजिए, पुलिस तो हमारा लिख दिया गया, अब तो सही है हमारा। 3 पुलिस कैच द थीफ एंड पुश हिम इनटू देयर वैन। 3 पुलिस वाली, 3 सिपाही, 3 पुलिस वाले कैच कर लेते हैं, थीफ को पकड़ लेते हैं एंड पुश हिम, और उस थीफ को उसे पुश कर देते हैं। आप देख भी रहे हैं हमारा कैच हमारा प्लूरल वर्ब आ रहा है V1 एंड पुश भी हमारा प्लूरल आ रहा है V1, बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, चूंकि पुलिस प्लूरल होता है। लेकिन क्या यह सही है 3 पुलिस, या जब 3 है 3 तो पुलिस हो जाएगा? नेवर, पुलिसेस वर्ड इज नेवर मेंशन्ड। फिर क्या होगा? या तो लिखना होगा 3 ऑफ द पुलिस, क्या लिखेंगे? 3 ऑफ द पुलिस, या लिखना होगा 3 पुलिस मैन। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये 3 हमारा है जो शो कर रहा है, फिर काउंटेबिलिटी आएगा तो लिखना होगा 3 ऑफ द पुलिस। जब 3 के बाद ऑफ लगाएंगे तो वहां 3 हमारा वो क्या हो गया? वो नाउन के रूप में आ गया कि पुलिस में से कितने? 3 बंदे, उन 3 पुलिसकर्मियों ने कैच को वो क्या कर रहे, वो थीफ को कैच कर लेते हैं। या फिर हमें लिखना 3 ऑफ द पुलिस, अगर लिखते हैं तो सही, या लिखना होगा 3 पुलिस मैन कैच द थीफ एंड पुश हिम इनटू देयर वैन। दियर आ रहा है इसी के लिए, पुलिस के लिए। सो हमारा रॉन्ग पार्ट इज व्हाट? ए। नंबर 9 का हमारा ए हो गया रॉन्ग। और वर्ड्स कौन कौन से हमारे जो है इसमें? 3 पुलिस, द वर्ड इज 3 पुलिस, THREE, 3 पुलिस इज रॉन्ग। उसकी जगह क्या हो जाएगा? 3 ऑफ द पुलिस, और या फिर क्या होगा? 3 पुलिसमैन, 3 पुलिसमैन, 3 पुलिसमैन। ओके, सो हियर 3 police is wrong and 3 policemen या 3 of the police are right. These words, दोनों में से कोई भी हमारा हो सकता है। No, one error here. There is this error of spelling here. I would like to rectify here. 3, THREE, but I have written here THEE. So I would like to rectify here THREE. 3 THREE, 3 policemen. Okay. So now, last sentence is number 10. The vermins have destroyed the crops in my field totally. The vermins, come on, क्या vermins word को आप देखें? Vermins कहीं मिला? Vermins, oh yes, here, nouns looking singular, देखने में singular होते हैं but plural actually, और vermin होता है जी plural, ना कि vermins। जैसे people का plural peoples नहीं, पुलिस का polices नहीं, उसी तरह से vermin का vermins नहीं। और क्लियर हो गया हमारा कहां एरर है? पार्ट ए इज erroneous। हमारा होना क्या चाहिए? द vermins की जगह द vermin। और वर्मिन किसे कहते हैं? मैंने शायद लिख दिया है, वर्मिन किसे कहते हैं? नहीं लिखा मैंने, वर्मिन मैंने नहीं लिखा है, मैंने ओरली बताया था। वर्मिन कहते हैं द बर्ड और द इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, जो आते हैं बड़ी झुंड में। ओके, जैसे ग्रास हॉपर्स, जैसे क्रिकेट, ये सारे एकदम पूरा उनका लोकास्ट, प्लेग, उनके झुंड को प्लेग कहते हैं। सो इफ द प्लेग ऑफ लोकास्ट्स, उसी चीज को, पूरे प्लेग को, पूरे झुंड को क्या कहते हैं हम लोग? वर्मिन, नॉट वर्मिन्स। सो द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड, क्या करूं? द फार्मर इज ऑलरेडी व्हाट? वेरी वरीड। क्यों कर वो चिंतित है किसान? क्योंकि द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, वर्मिन ने क्रॉप्स को समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इन माई फील्ड टोटली, थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ा, पूर्ण रूप से एकदम खेत में खड़े फसल को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। हमारा रॉन्ग पार्ट क्या हो गया नंबर 10 में? एरोनियस पार्ट इज ए। और वर्ड कौन कौन से हमारे? वर्मिन्स। वर्मिन्स की जगह क्या हो जाएगा? वर्मिन।
लिखना चाहूंगा मैं यहां VERMIN and VNS is here vermins and VERMIN। आप देख रहे हैं जो S से लास्ट कर रहा है वर्मिन्स, दैट इज रॉन्ग एंड वर्मिन इज राइट। ये रहे आज आपके 10 सेंटेंसेस पर डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं ये नाउन नंबर का ये दो टॉपिक जो वो नाउन्स लिए गए, लुकिंग प्लूरल बट सिंगुलर, प्लूरल देखने में लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, और कुछ नाउन्स लुकिंग सिंगुलर जो देखने में सिंगुलर दिखते हैं बट होते हैं एक्चुअली प्लूरल, उन पर आज ये सारा डिस्कशन हुआ। और ये 10 सेंटेंसेस का डिस्कशन के बाद सॉल्यूशन हुआ, जिसका सॉल्यूशन का आंसर जोन में यहां आंसर लिखा गया है। अब आपकी बारी है स्क्रीनशॉट लेने की, कि ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे नोट कर सकें। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर ठीक है, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं, चलता हूं मैं फिर मिलता हूं मैं अगले क्लिप में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।